Okay. So how many of you all are new to this chapter? 3 of you all are new and 2 it is already done. Okay. What's your name? Arush. Arush. Okay. You? Swara. You're Swara. Which school you're from, Arush? Sacred Heart Boys High School. Sacred Heart of? Sacred Heart Boys High School. Boys High School. Okay. SSC board? Yes. Okay. You? SSC Parley. Parley. Okay. Huh, you? Maitri. Maitri. Cardinal Gracious High School. Cardinal Gracious High School. SSC. SSC board. Okay. Fine. So this chapter, since it's a backlog classes, so for notes, no, I think that girl didn't contact me only. Y'all gave your number to her? Okay, she didn't contact me. I'll again share my number with you all. So I'll give you all the notes for that because the first batch has already gone ahead. And now I will teach what this chapter is. Okay, this is a very simple and easy chapter. So I'll brush it up once again. You might feel little bored, but it will be a revision for you both. Okay, and after that we'll start with body fluids. Okay. Okay. So what do we study about living world here is ये फर्स्ट चैप्टर है आपके टेक्स्ट बुक में. तो मैं आई जस्ट गिव यू इंट्रोडक्शन. सो बायोलॉजी में 2 पार्ट्स रहते हैं, बॉटनी और जूलॉजी. ओके, सो बॉटनी में सारे प्लांट्स के चैप्टर्स आते हैं, जूलॉजी में एनिमल्स के बारे में, ह्यूमन के बारे में आते हैं. सो यहाँ पर जूलॉजी इज टेकन बाय अनदर सर, कुपेकर सर. You may not have met him. From next week he'll be starting a classes for you all. Okay, the first batch has already met him and the second botany is completely handled by me. तो ये जो चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड वाला चैप्टर है ना, ये चैप्टर बॉटनी में आता है एंड दिस इज द फर्स्ट चैप्टर. इट्स द इजीएस्ट चैप्टर व्हाट यू ऑल आर हैविंग. ठीक है. हाँ, तो अभी हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज लिविंग. तो लिविंग का मतलब आपको पता है, जिनके पास लाइफ होता है दैट इज नोन एज लिविंग. ओके, सो whoever possesses life is called as living. And we define that how do we classify who is living and not living. So हम क्या करेंगे, 2 कैटेगरीज करेंगे. अगर अभी कोई चीज़ में ये वाले पॉइंट्स मतलब डिफाइनिंग फीचर वाले पॉइंट्स आता है, any organism if it is showing the defining feature properties. okay, अभी सोचो कि ये वाटर बॉटल ने ये जो डिफाइनिंग फीचर में जो भी पॉइंट्स आता है, अगर इसने सेटिस्फाई किया तो आज से मैं बोल सकती हूँ ये वाटर बॉटल क्या है, लिविंग है. ओके, कैरेक्टरिस्टिक फीचर एक कैटेगरी है जो फीचर लिविंग में भी देखने को मिलेगा और नॉन लिविंग में भी देखने को मिलेगा. ओके, so defining feature में 3 points है which are there. So that's why it is we say that it is present in all living organisms, exclusively in living organisms. Defining feature में 3 points है. एक है metabolism, second one is cellular organization, third one is consciousness. What is this we'll do in detail. So एक organism को living बोलने के लिए क्या points, क्या features रहना चाहिए, मेटाबॉलिज्म होना चाहिए, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और तीसरा कॉन्शियसनेस. जो फीचर लिविंग में भी एज वेल एज नॉन लिविंग में भी देखने को मिलेगा वो है ग्रोथ. ग्रोथ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म आल्सो शोज एज वेल एज नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म आल्सो शोज. उसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर. ये स्लाइड समझ में आया सबको? कोई डाउट्स? नो? शैल आई गो अहेड? What is metabolism? We'll do it in detail. Okay. Now there is another feature that is reproduction. Yes, reproduction is only shown by living organism. I completely agree with you all. Correct? But reproduction is considered as an exceptional feature. Why? Do you think all living organisms reproduce? No. Right, individually human beings में हर एक human being reproduce करता है क्या? There are some human beings who are unable to reproduce, है ना? Infertility problems होते हैं. Maybe there are some human beings who are fertile but they don't want to reproduce. तो वो तो choice based है ना? तो ये reproduction is a character seen only in living organisms, है ना? अभी you will never see a non-living organism reproducing.
इट इज अ फीचर शोन बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन हमने इधर क्यों नहीं डाला? अगर मैंने इधर डाला होता, जो ऑर्गेनिज्म, जो ह्यूमन बींग्स या फिर जो ऑर्गेनिज्म इनफर्टाइल होते हैं वो क्या बन जाते हैं? नॉन लिविंग बन जाते हैं। इसीलिए हमने इधर नहीं डाला, समझा? सो वी कॉल reproduction as an exceptional feature of living organism. समझा? Now tell me which is a characteristic feature? Growth. Which is a defining feature? Metabolism, cellular organization, Consciousness. Which is the exceptional feature? Reproduction. समझा? ये 2 स्लाइड्स पक्का आया? ओके। अभी हम हर एक कैरेक्टर के बारे में, हर एक फीचर्स के बारे में इंडिविजुअली पढ़ेंगे, ठीक है? पहला हम पढ़ते हैं ग्रोथ। ग्रोथ क्या है? इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर। यू एग्री विद मी? व्हाट इज एक्चुअली कॉल्ड एज ग्रोथ? आपको पता है हम कोई भी ऑर्गेनिज्म को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जिनके पास एक सेल होता है उनको क्या बोलते हैं? और जिसके पास एक से ज़्यादा सेल है, हाँ। तो ये ग्रोथ यूनिसेलुलर में अलग डेफिनेशन है, मल्टीसेलुलर में अलग डेफिनेशन है, ओके? यूनिसेलुलर में क्या होगा कि अभी लेट मी कंसिडर, गिव मी एन एग्जांपल ऑफ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, whoever, whatever you all know. Increase in mass plus increase in number of size, किसकी ऐसा increase in size? मल्टीसेलुलर। इनको बोलते हैं ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। समझा? ओके। ग्रोथ में भी 2 टाइप्स है, क्योंकि मैंने क्या बोला, ग्रोथ नॉन लिविंग दिखाता है। मैंने बोला था ना स्टार्टिंग, नॉन लिविंग भी ग्रोथ दिखाता है। तो आपको लगा होगा ग्रोथ कैसे नॉन लिविंग दिखाएगा, लगा होगा ना? सो हम ग्रोथ में भी 2 टाइप्स देखते हैं। एक है एक्सटेंसिव ग्रोथ और दूसरा है इंट्रिंसिक ग्रोथ। एक्सटेंसिव ग्रोथ सिर्फ कहाँ होता है? बाहर से होता है, एक्सटर्नली होता है। Extrinsic growth is only from outside. I'll give you the example, that time it will be easy. Now you can see this. This is a desert picture. Desert में आपने देखा होगा, अगर आप कोई राजस्थान या दुबई डेजर्ट में जाते हो तो वहाँ पर सैंड ड्यून्स रहता है, वो जो माउंटेन्स, ओके? तो ये क्या होता है? अगर तूफान आया तो वो सारा सैंड एक ड्यून से दूसरा ड्यून में गया। तो पहले इतना बड़ा था, एक इतना छोटा था, अभी इसका सैंड इसके ऊपर गया, ये बड़ा हो गया, वो छोटा हो गया, करेक्ट? तो मतलब कहाँ से ग्रो कर रहा है? सिर्फ बाहर से ग्रो कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हो, हिमालयास का लेंथ एवरी दिसंबर टू फरवरी कुछ किलोमीटर्स बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? आइस डिपोजिशन की वजह से। मतलब आइस सिर्फ बाहर से डिपॉजिट होता है, लेकिन जैसे वो जून जुलाई मई जून आया तो आइस पिघलेगा ना। सो व्हाट विल हैपन? इट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल साइज। मतलब ये जो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है ये बाहर से होता है, प्लस यहाँ पर क्या होता है? रिवर्सिबल है, बड़ा होता है, छोटा होता है, वो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है। इट्स गिवन ओवर हियर, टेक्स प्लेस एक्सटर्नली, रिवर्सिबल ग्रोथ है। एंड ऐसे ग्रोथ हम किस में देखते हैं? सिर्फ नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। वी सी इट इन माउंटेन, सैंड ड्यून्स, मे बी वेव्स, ओशन के वेव्स, एक के ऊपर एक आया तो बड़ा वेव बनेगा, लेकिन इंट्रिंसिक ग्रोथ ऐसा नहीं है। दिस ग्रोथ टेक्स प्लेस इंटरनली, ओके? और ये इरिवर्सिबल ग्रोथ है ना? बेस्ट एग्जाम्पल इज सी ओवर हियर, अ बेबी टर्निंग इनटू एडल्ट। उल्टा होगा क्या? कभी भी नहीं होगा। सो और ग्रोथ कैसे होगा? फ्रॉम इनसाइड इट इज ग्रोइंग। हम ऐसा नहीं कि एवरी ईयर वी आर डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ स्किन, हम उतने ही हाइट के हैं लेकिन एक एक लेयर ऑफ स्किन आ रहा है, ऐसा नहीं है ना। हम अंदर से बढ़ रहे हैं। सो ग्रोथ इज इंटरनली एंड irreversible. Okay, now can you tell me the types of growth? Extrinsic growth, intrinsic. Extrinsic growth में क्या होता है? Easy to remember, E externally and it is reversible. Okay, and intrinsic growth? Takes place internally, irreversible. Which takes place in living organisms?
Intrinsic growth. Which takes place in non-living organisms? Extrinsic. What kind of feature is growth? Very good. Characteristic feature. समझा? ओके समझ में आ रहा है ना सबको? हाँ बोर लग रहा है तुम दोनों को? थोड़ा सा हाँ बोल, क्योंकि हो गया ना ये, वही स्लाइड मैम दिखा रही है, कुछ नया नहीं है. हाँ ओके. नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन. अभी आप बताओ रिप्रोडक्शन कैसा फीचर था? क्यों एक्सेप्शनल बोला? हाँ क्योंकि सारे ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस नहीं करते, चॉइस बेस्ड होता है या फिर जैसे उसने बोला इनफर्टिलिटी होते हैं. ओके तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं हम? ओके तो रिप्रोडक्शन कौन दिखाता है? लिविंग दिखाता है, नॉन लिविंग दिखाता है? लिविंग. समझा? हाँ तो रिप्रोडक्शन के मतलब क्या है? एबिलिटी टू गिव बर्थ टू द यंग वंस ऑफ इट्स ओन काइंड. अभी अगर एक हाथी ने पप्पी को बर्थ दिया तो वो रिप्रोडक्शन नहीं है. डॉग को ही पप्पी को बर्थ देना चाहिए. कैट हैज टू गिव बर्थ टू अ किटन, cow has to give birth to a calf, human has to give birth to an infant. Okay so उसके जैसे होना चाहिए बच्चा. Got it? हाँ हम रिप्रोडक्शन को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ये आपको अच्छे से पता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सुना होगा सब लोगों ने. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? जो बच्चा बनता है ना वो बिल्कुल अपने मम्मी का कॉपी होता है. ओके क्योंकि वहाँ पर सिर्फ एक ही पेरेंट रहते हैं और एक ही पेरेंट से आते हैं. सो ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वी ऑल आर द रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. डू वी कंप्लीटली आर वी कॉपी ऑफ वन ऑफ अवर पेरेंट? अभी आपकी जगह पर आपके पेरेंट आया तो मैं विल आई आइडेंटिफाई और नॉट? विल आइडेंटिफाई, राइट? हाँ. सो ऑफस्प्रिंग रिसेंबल देयर पेरेंट. हम उनके जैसे दिखते हैं. क्यों दिखते हैं हम उनके जैसे? Correct. They have passed their genes to us. We resemble them, but we are not their copies. Okay? हाँ. How many parents are involved? Two parents. Sexual में only two, not more than two. Okay? So asexual reproduction is very simple. कुछ नहीं, एक bud किया, fragmentation हुआ, fast है और easy है. Whereas sexual reproduction is complex and slow. Okay? अभी मैं क्वेश्चंस यहाँ से पूछती हूँ. किस रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स की जरूरत है? किस रिप्रोडक्शन सबसे फास्ट है? हाँ एसेक्सुअल. ओके किस रिप्रोडक्शन में हम देखते हैं कि बच्चा पेरेंट का क्लोन होता है? एसेक्सुअल. गुड. समझा सब लोगों को? ओके नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हम देखते हैं वो है बाइनरी फिशन. अभी बाइनरी का मतलब क्या है? दो. बाइनरी मीन्स टू, है ना? मैथ्स में पता है आपको, बाइनरी नंबर्स दो. ओके मतलब अभी ये देखो, इसका एग्जांपल इज अमीबा. ये एक अमीबा है, इसने डिवाइड किया और कितने सेल्स को प्रोड्यूस किया है? दो. मतलब ये देखो ये क्या हो रहा है कि अमीबा ऐसे ब्रेक हो रहा है. फिजन का मतलब क्या है? ब्रेकिंग. सो नाम में ही है, दो सेल्स बन रहा है. हाउ इज इट फॉर्मिंग? थ्रू ब्रेकिंग, एंड ब्रेकिंग इज नोन एज फिजन. ओके हाँ. सो बाइनरी फिजन के लिए अमीबा एग्जाम्पल है. सेकेंड एग्जाम्पल इज बडिंग. ईस्ट और हाइड्रा में होता है. हाइड्रा तो एसएससी वालों ने सुना है. कहाँ किस कौन सा एनिमल है वो? कौन से फाइलम में आता है? वेरी गुड. सीलेंट्रेटा में आता है. 10वीं में था या 9th में था? 10th में था. सीलेंट्रेटा. हाँ उनके पास क्या होता है? सीलेंट्रेटा के पास टेंटिकल्स और नीडोब्लास्ट. इसको हम स्टिंगिंग सेल्स भी बुलाते हैं. स्टिंग करता है ये. ओके पॉइजनस होते हैं. हाँ हाइड्रा और ये इसको बोलते हैं ईस्ट. ईस्ट कौन सा ऑर्गेनिज्म है? किस टाइप का ऑर्गेनिज्म है ईस्ट? फंगाई. करेक्ट. कहाँ यूज होता है ईस्ट? हम यूज करते हैं क्या? ब्रेड, बेवरेजेस बनाने के लिए ईस्ट की जरूरत है. ओके देखो दीज आर यूनिसेलुलर फंगाई. ऐसे दिखते हैं वो, सर्कुलर होता है. कैन यू सी वो उसने एक बड प्रोड्यूस किया इधर.
ये बड ग्रो करेगा और ब्रेक हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं बडिंग। ईस्ट एंड हाइड्रा शोस। फ्रैगमेंटेशन का मतलब ब्रेकिंग। ये आपके 10th में था, स्पाइरोगायरा याद है, फिलामेंटस आल्गे याद है ना, 10th में था। तो यही है वो स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा को मैं कितना भी पीसेस में कट करूं, ईच वन विल ग्रो इनटू अ सेपरेट इंडिविजुअल। इसको बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन। नेक्स्ट पढ़ेंगे ट्रू रीजनरेशन। शायद आपने एनिमल किंगडम में, एनिमल किंगडम था क्या चैप्टर, हाँ क्लासिफिकेशन था, उसमें आपने प्लैटीहेलमिन्थस पढ़ा होगा, टेप वर्म याद है, हाँ फ्लैट वर्म्स करेक्ट। उसी फ्लैट वर्म में ये एनिमल आता है जिसका नाम है प्लेनेरिया, सुना होगा। ये प्लेनेरिया को क्या करेंगे कि ट्रू रीजनरेशन का मतलब, अगर मैंने उसको कट किया, ये वाला पार्ट एब्डोमेन प्रोड्यूस करेगा, ये वाला पार्ट हेड प्रोड्यूस करेगा। इसको बोलते हैं हम ट्रू रीजनरेशन। सो डिड यू अंडरस्टैंड ऑल द 4? बाइनरी फिजन, बडिंग, फ्रैगमेंटेशन, ट्रू रीजनरेशन। समझा? 4 टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, 12वीं में 2 सेपरेट बड़े बड़े चैप्टर्स है, तो उधर पढ़ेंगे। ओके, हाँ। नेक्स्ट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू रिमेंबर। हाँ, लेट मी गो बैक टू दिस। मैंने ये अभी ड्रॉ किया था ना, तो मैंने किसके लिए, किस एग्जाम्पल के लिए, किस फीचर के लिए ड्रॉ किया था? ग्रोथ के लिए ड्रॉ किया था। लेकिन मैं अभी इसको क्या बोल रही हूँ? रिप्रोडक्शन। दोनों एक ही है क्या? तो मैंने क्यों एक ही एग्जाम्पल दे दिया? मैंने ग्रोथ के लिए भी वही दिया ना, अभी मैं रिप्रोडक्शन के लिए वही पिक्चर दिखा रही हूँ। याद है, थोड़ी देर के पहले मैंने ड्रॉ किया था ग्रोथ के लिए, इंक्रीज इन मास प्लस इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स बोला था। यहाँ पर भी सेम हो रहा है ना। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन बहुत अलग चीज़ है। लेकिन मैंने एक ही एग्जाम्पल क्यों दिया? मैंने एक ही एग्जाम्पल इसलिए दिया क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर द सेम। समझा? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में अभी ये लोग ग्रोथ भी बोल सकते हैं प्रोसेस के लिए, यू कैन से इट एज ग्रोथ फॉर दिस प्रोसेस, यू कैन ऑल्सो से इट एज रिप्रोडक्शन। दे आर सिनोनिम्स, दे आर द मीनिंग्स। सिनोनिम्स पता है ना, दे आर द सिनोनिम्स। लेकिन कैन आई कॉल द सेम थिंग फॉर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म? अभी आप एक बच्चा है, एक बच्चा आप लोग 5 साल बाद देख रहे हो, तो आप उसकी मम्मी को बोलोगे क्या, अरे क्या रिप्रोडक्शन किया आपके बच्चे ने? हाँ बोलोगे क्या? मार पड़ेगी ना मम्मी से। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? टू प्रोड्यूस अ न्यू ऑफस्प्रिंग। तो ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए ग्रोथ भी बोल सकते हो, रिप्रोडक्शन बोल सकते हो, सेम है। लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए ग्रोथ अलग है, रिप्रोडक्शन अलग है। दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। किस में म्यूचुअली इंक्लूसिव होता है? हाँ, किस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है? प्लेनेरिया कैसे टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन दिखाता है? ट्रू रीजनरेशन। अमीबा कैसे टाइप दिखाता है? फिजन। स्पाइरोगायरा कैसे दिखाता है? गुड, आ गया। ओके, हाँ। अभी ये वाला एनिमल क्या है? हॉर्स। तुम लोगों को हुआ है ना, बताओ कौन सा है? म्यूल। ये जो एनिमल है ना, हाँ, ये हॉर्स और डोंकी का बच्चा है। और हॉर्स एक अलग स्पीशीज है, डोंकी एक अलग स्पीशीज है। इनका जो बच्चा है उसको बोलते हैं हम म्यूल। ओके, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, ये इनफर्टाइल है, लेकिन ये लिविंग है। ये मेटाबॉलिज्म भी दिखाता है, ये कॉन्शियसनेस भी दिखाता है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी दिखाता है। ओके, तो इसीलिए इन लोगों की वजह से, किसके लिए? म्यूल, वर्कर बी और स्टेराइल ह्यूमन कपल, इन तीनों के वजह से हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर, इट इज एन एक्सेप्शनल फीचर। समझा? ग्रोथ समझा, रिप्रोडक्शन समझा। आगे जाएंगे? कोई रिवीजन चाहिए? नहीं ना? ओके,
सबका एडमिशन हुआ है? नहीं हुआ है, आज डेमो क्लास है तुम्हारा। Demo class नहीं, they have like down payment हुआ है, they have told me to attend the lecture. पेमेंट हुआ है ना? हाँ. हाँ ठीक है, तो मैं आपको ये पीपीटी शेयर करती हूँ, जिनका पेमेंट हुआ है बस उनको मिलता है पीपीटी। ओके ये आंसर कर सकती हो? दिख नहीं रहा है? Which of the defining property of living organism is? दो आंसर है ना, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस, बी एंड सी। ओके हाँ ये कर सकते हो, वेरी गुड। वर्क भी अभी देखा ना हमने। हाँ सिनोनिम टू ग्रोथ, करेक्ट, अमीबा, बिकॉज सारे दूसरे ऑर्गेनिजम्स आर मल्टीसेलुलर। प्लेनेरिया तो फ्लैटवर्म है, स्टारफिश तो आप देख सकती हो आंखों में, है ना? हाँ करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। एवरीबडी एग्रीज विद मी? कोई डाउट है दूसरे ऑप्शंस में? ओके नेक्स्ट जाएंगे, ये ऑल ऑफ द अबव। देखो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं नीट में, ठीक है। अभी आया मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म कैसे फीचर है? डिफाइनिंग फीचर। अभी मेटाबॉलिज्म तो पूछ रही थी ना स्वरा, व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? जो भी हमारे बॉडी में रिएक्शंस होता है ना, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, जैसे डाइजेशन, जैसे रेस्पिरेशन, जैसे नर्व इम्पल्स, जैसे एक्सक्रीशन, किडनी में भी कुछ रिएक्शंस होता है, जो भी रिएक्शंस हमारे बॉडी में होता है उसको बोलते हैं हम मेटाबॉलिज्म। ओके, सो इट इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सम ऑफ टोटल केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इनसाइड द सेल। सेल के अंदर जो भी रिएक्शन, शायद सुना होगा आप लोगों ने, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल सुना है ना, तो ये रिएक्शंस को ही हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ओके हाँ, सो व्हाट इज द, इस मेटाबॉलिज्म को हम डिवाइड करेंगे इनटू टू कैटेगरीज। एक है एनाबॉलिज्म और दूसरा है कैटाबॉलिज्म। स्लाइड थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है या समझ में आ रहा है? स्लाइड से इजी लग रहा है ना स्लाइड? हाँ हाँ, थोड़ा लाइट दिख रहा है क्या? तो एक मिनट, ये वो लाइट थोड़ा बंद करना चाहिए था, वो बच्चों को स्लाइड नहीं दिख रहा है। वीडियो में दिखेगा नहीं प्रॉपर। वीडियो में दिखेगा नहीं क्या? तो एक काम करते, इधर बैठ सकता है क्या इसको? हाँ तुम लोग उसका चश्मा भी है ना, वो रिफ्लेक्ट हो रहा है शायद। अभी देखो सही है ना? ठीक है हाँ। बाकी सबको कोई प्रॉब्लम है? तुझे प्रॉब्लम है? वो ग्लासेस की वजह से वो रिफ्लेक्ट होता है। ओके हाँ, अभी मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को क्या बोलते हैं हम? मैंने क्या बोला? मेटाबॉलिज्म इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज एनाबॉलिज्म, अनदर वन इज कैटाबॉलिज्म। ओके, सो एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि देखो ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, इसको हम लोग यूजिंग एनर्जी हम बनाएंगे एक बड़ा मॉलिक्यूल। बेस्ट एग्जाम्पल इज फोटोसिंथेसिस। सबको फोटोसिंथेसिस पता है? फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड छोटा मॉलिक्यूल है, वाटर छोटा मॉलिक्यूल है, एनर्जी तो सनलाइट का है, वाटर कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ के
हम बनाते हैं ग्लूकोज. देखो CO2 plus H2O gives rise to C6H12O6 which is a big molecule. ओके उसी को बोलते हम एनाबॉलिज्म. मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को लेकर जॉइन करके बड़ा मॉलिक्यूल बनना इज एनाबॉलिज्म. समझा? कैटाबॉलिज्म का मतलब नाम में ये कैटा का मतलब क्या है? काटना. तो हम अभी बड़े मॉलिक्यूल को काटेंगे. We are going to break the big molecule and it forms a small molecules and there is release of energy. Best example is respiration. Respiration का formula क्या है? Glucose in the presence of oxygen is broken down into carbon dioxide and water and there is release of enormous amount of energy which we use it in the form of ATP. Correct? हाँ? तो मेटाबॉलिज्म क्या है? एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म. समझा? कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या है? अभी ओन में बताओ, ओन वर्ड्स में बताओ. Dividing the larger molecules into smaller. हाँ, टू गेट Energy. and small molecules. हाँ, and what is anabolism? Small molecules and energy. Gives a large molecule. What is an example for anabolism? Photosynthesis. An example for catabolism? समझा? Clear? No by hearting here. Okay? हाँ. हाँ. अभी अगर कोई रिएक्शन सेल के बाहर होता है, सेल के बाहर अगर कोई रिएक्शन हुआ, जैसे आई विल टेल यू, हम एक रिएक्शन करेंगे होगा IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. तो फर्टिलाइजेशन कहाँ करते हैं वो लोग? टेस्ट ट्यूब में करते हैं. ओके. इनसाइड द सेल के लिए एक वर्ड होगा इन वाइवो. इन विट्रो मतलब आउटसाइड, इन वाइवो मतलब इनसाइड. समझा? क्लियर? व्हाट इज लिविंग रिएक्शन बताओ अभी? That is supposed to occur in a cell of a आउटसाइड द सेल. करेक्ट. ओके. मेटाबॉलिज्म समझ में आया? हाँ, सबको आज से पता चला ना व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? गिव मी अ डेफिनेशन फॉर मेटाबॉलिज्म. sum of all the reactions which happen in a Cell. Very good. That is metabolism. Next is consciousness. Now what type of feature is this? Defining or consciousness? Defining. Everybody will say it is defining. Okay. Now what is consciousness? You being aware about the surrounding. अभी जैसे AC का टेम्परेचर बढ़ गया, आप बोलोगे ना मैम ठंडी लग रही है. ये बेंचेस बोलेंगे क्या ठंडी लग रही है? अभी बारिश आया तो देखो कुत्ते बिल्ली तो भाग जाएंगे because you don't want to get in the rain. So that is consciousness. You are aware what is happening around you. इसीलिए देखो अगर कोई चक्कर आके गिर गया वैसे ही इज अनकॉन्शियस. मतलब उसके ऊपर बारिश आया, आग गिरा, कुछ भी हुआ, वो रेस्पॉन्ड ही नहीं करेगा. दैट इज अनकॉन्शियस. ओके. सो व्हाट इज कॉन्शियसनेस? being aware. Awareness about the society. About surrounding. Sorry. Response to the environmental stimuli. Stimuli. Environmental stimuli को हम 3 टाइप्स में डिवाइड करेंगे. ये PPT में आपको देने वाली हूँ, ठीक है? हाँ. First is physical stimuli. Physical stimuli can be light, temperature, gravity. आप देख सकते हो यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है? क्या होगा स्कूल में? फोटोट्रोपिज्म. नहीं किया? तो क्या करते हैं? मतलब या फिर ये एक्सपेरिमेंट के बारे में टेक्स्ट बुक में दिया होगा कि आप लोग एक पॉट लोगे, उसमें एक सीड डालोगे और पानी डालोगे और उसके ऊपर एक बॉक्स डालोगे. बॉक्स के एक साइड पर you'll make a hole and you will focus a light. As the seedling grows, can you see it is growing? मतलब ये स्टेम सीधा होना चाहिए but it is growing towards the light. मतलब वो बॉक्स में जो होल से लाइट आ रहा है ना उसके तरफ ग्रो हो रहा है. सीड को दिखता है क्या लाइट? नहीं, लेकिन वो सेंस करता है. क्यों वो सेंस करता है? क्योंकि वो लिविंग है. जो लिविंग होता है वो सेंस करता है. जैसे कोई आर्टिफिशियल प्लांट को देखो, रखो, इट्स नॉट गोइंग टू सेंस. सो अगर लिविंग है इसके लिए वो सेंस हो रहा है. सेकेंड पिक्चर में देखो, ये क्या कर रहा है? ये कुत्ता हस्की. हस्की पता है ना, साइबेरियन डॉग. क्यों वो फ्रिज के अंदर बैठा हुआ है? Because his habitat is supposed Yes, his habitat is supposed to be cold. He's from a cold place. तो उसको गर्मी जमती नहीं है, इसीलिए उसको कैसे पता फ्रिज ठंडा होता है? उसने सेंस किया, इसीलिए वो अंदर जाकर बैठा हुआ है.
Okay, so this is physical stimuli. Bio clear? Okay, next हम उधर दिखता नहीं है, उधर इधर आ जा. हाँ, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे केमिकल स्टिमुलाई. केमिकल स्टिमुलाई में हम पढ़ेंगे पोल्यूशंस एंड एसिड्स. ओके, सो हम देखेंगे ये आपको पेड़ में, कैन यू सी हियर सम, दिस पिक्चर इज लिटिल नॉट क्लियर, बट कैन यू सी सम वाइट कलर पैचेस ऑन इट? यू नो व्हाट इज इट? हाँ बोल. लाइकन. ओके, हाँ, देखो कितना स्मार्ट है ये. ऐसा कुछ नहीं, पिछली क्लास हुआ है उनको सब. ऑफ सीजनल ब्रीडर्स लाइक पिकॉक. पिकॉक जैसे मन करता है वैसे डांस होता है, करता है क्या? उसको मूड पर डिपेंड है क्या? नहीं. कब डांस करता है? व्हेन इट रेन्स. क्यों करता है? दैट इज देयर ब्रीडिंग सीजन. वो रेन की वजह से खुशी से नाचेगा नहीं. जब से रेन आया तब क्या है उनका? ब्रीडिंग सीजन. हर एक एनिमल को अपना ब्रीडिंग सीजन होता है. तो ब्रीडिंग सीजन के लिए मेल पिकॉक, पिकॉक इज अ मेल, इट dances to attract peahen. Okay, so वो rain is an indication, rain is an external stimuli which indicated that we have to reproduce. Okay, so biological breeders हो सकता है या फिर response to other organism. इसके लिए एग्जाम्पल आप देख सकते हो. आपके घर के पास जो भी स्ट्रे डॉग्स है ग्रुप में रहते हैं, कोई भी एक नया डॉग आया तो क्या करेंगे? ये bark at it. They are showing response. उन्होंने पहचान लिया कि ये हमारा ग्रुप का नहीं है, ये हमारा इलाके का नहीं है, तो इसीलिए they started to bark at it. So that kind of stimuli is known as biological stimuli. So there are three stimuli: physical stimuli, chemical stimuli, biological stimuli. Okay, did you all understand consciousness? Okay, next is सेल्फ कॉन्शियसनेस. क्या है सेल्फ कॉन्शियसनेस? यू आर अवेयर अबाउट योर सेल्फ. जब भी आप एग्जाम में कॉपी करते हो, खुले कॉपी करते हो क्या? चुप चुप के कॉपी करते हो ना? क्यों? क्योंकि ये गलत है, आपको पता है. सो ये सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ किस में है? ह्यूमन बीइंग्स में है. Other organisms, animals, plants or any kind of organisms don't show. So self-consciousness is being aware about yourself. You know what is right, what is wrong. That is only present in human beings. Okay. यहाँ पर एक patient है. Can I say it's a coma patient? Yes. This coma patient shows consciousness. It is aware about its surrounding. मतलब अभी मैंने अगर इनका वेंटिलेटर को बंद किया तो पैंटिंग करेगी, कुछ तो दिखाएगी ना सिम्टम. या मैंने उनको खाना थोड़ा कम दिया तो डिफिशिएंसी हो जाएगा. ऑक्सीजन सिलेंडर बंद कर दिया तो फिर सफिकेशन हो जाएगा, शी इज गोइंग टू डाई. हाँ, सो कोमा पेशेंट विल हैव कॉन्शियसनेस बट इट डजंट हैव सेल्फ कॉन्शियसनेस. सो सेल्फ कॉन्शियसनेस इज ओनली प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग्स. कॉन्शियसनेस इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. समझा? ओके. नेक्स्ट लास्ट वन इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोलेंगे? इट इज़ अ फिनोमिनन ऑफ इंटरैक्शंस. हम लोग इंटरैक्शन के वजह से बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं. जैसे देखो, इफ आई कंसिडर दिस एज अ सेल, एक सेल, टिश्यू से बड़ा है ऑर्गन, ग्रुप ऑफ टिश्यूज मेक ऑर्गन. ना ऑर्गन देखो, ये था मसल सेल, ये सब कुछ कर रहा था. अभी ये मसल टिश्यू क्या करेगा? सिर्फ थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करेगा और थोड़ा 2-3 लोकोमोशन में हेल्प करेगा. अभी जैसे मसल टिश्यू बन गया स्टमक, स्टमक का काम क्या है? सिर्फ
डाइजेशन करना, डाइजेशन करना और थोड़ा मूवमेंट दिखाना, पेरिस्टालिसिस बोलते हैं मूवमेंट, मतलब फूड ऊपर से नीचे भेजता है ना, मूवमेंट करता है। जैसे वो क्या हुआ, डाइजेस्टिव सिस्टम बन गया, अभी इसका काम क्या है, सिर्फ डाइजेशन। मतलब जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता है फंक्शंस घटता है, एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ इंटरैक्शंस, है ना। आप और आपके रूममेट के बीच में बातचीत होता है कि तुम इतना काम करो, मैं इतना काम करती हूँ। नाउ व्हेन द थर्ड रूममेट कम्स, अगेन आपके बीच में बातचीत होती है। बातचीत क्या है, इंटरैक्शन है। वैसे ही सेल्स के बीच में देयर इज इंटरैक्शन, दैट्स व्हाई वर्क reduces as the complexity increases. समझा everybody? That is what it is saying. Properties of a tissue are not seen in the constituent cell but arise due to interactions. Because of interaction everything is happening. Properties of a cellular organelle. Organelles पता है ना? Can you name some organelles? Nucleus, mitochondria, plasma membrane, cytoplasm is not an organelle, हाँ, Golgi apparatus, vacuoles, ये सब सुना है ना, हाँ। तो ऑर्गेनल सेल से भी छोटे होते हैं ना, बिकॉज दे आर इनसाइड द सेल। सो ऑर्गेनल्स का जो प्रॉपर्टी है, ऑर्गेनल से भी छोटे क्या है, मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स बनते मेक्स ऑर्गेनल, मेनी मॉलिक्यूल्स, ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सब साथ में मिलाकर ऑर्गेनल बनाते हैं। जो प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल्स में देखते हो वो ऑर्गेनल में देखने को नहीं मिलेगा। जो प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनल में देखते हो वो सेल में देखने को नहीं मिलेगा। सो जैसे कॉम्प्लेक्सिटी होता है फंक्शंस क्या होता है, कम होता है। समझा? हाँ। इंटरैक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरैक्शन इज द रिजल्ट ऑफ एमर्जेंट प्रॉपर्टीज। नया फंक्शंस आने के लिए क्या हुआ है, इंटरैक्शन इज रेस्पॉन्सिबल। अगर बातचीत नहीं होती है तो इट वोंट फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनल। ओके, हाँ। सो इसको बोलते हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को हम बोलते हैं इट इज अ कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। विच इज द कॉम्प्लिकेटेड अमंग ऑल द थ्री? cellular organization. What are the three defining features? Cellular organization. Okay. What is the definition for metabolism? Sum of all the reactions in a cell. Okay. Huh. Why? Which organism can show true regeneration? Planaria. Which living organism shows self consciousness? Human being. समझा? इतना हमने किया, अब सबको समझ में आया क्लियरली? कोई डाउट्स है? श्योर? शैल वी गो अहेड? तुझे थोड़ा लेट समझ में आएगा क्योंकि क्लास ना आधा घंटा हो चुका है। ठीक है, ज्वाइन हुई आज या फिर डेमो के लिए आई है? डेमो क्लास। हम लोग बोलते हैं कि एवरी ऑर्गेनिज्म इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग, मतलब एवरी ऑर्गेनिज्म कैन गिव बर्थ टू अ यंग वन विदाउट एनी, किसी ने बताना नहीं चाहिए, अपने आप से कर सकता है सेल्फ रेप्लिकेटिंग, सेल्फ इवॉल्विंग। यस, हम वी आर अंडर द एवोल्यूशन। एवोल्यूशन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ऐसे नहीं कि हम ह्यूमन बींग्स बन गए, एवोल्यूशन कम बंद हुआ, नहीं। अभी देखो, हम लोग होमो सेपियंस नहीं है, हम लोग होमो सेपियंस सेपियंस है। वी आर अ सब स्पीशीज, मतलब आगे में भी 30-40 जनरेशन के बाद और कुछ हो जाएगा जो हमसे अलग दिखेंगे। तो एवोल्यूशन होता रहता है, कंटिन्यूस प्रोसेस। ओके, हाँ। एंड सेल्फ रेगुलेटरी, मतलब अभी आप लोगों का खाना हो गया ना, डिड यू ऑल हैव योर फूड? आर यू गिविंग इंस्ट्रक्शन टू योर स्टमक और योर इंटेस्टाइन टू डू एनी फंक्शन? कि बोल रहा अभी डाइजेशन करो, अभी एसिमिलेशन करो, ऐसे इंट्रैक्शन, ऐसे कमांड दे रहे हो कि अपने आप नहीं, अपने आप हो जाता है ना सब कुछ बॉडी में, इसलिए उसको बोलते हैं हम सेल्फ रेगुलेटरी। सो एवरी ऑर्गेनिज्म इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग, सेल्फ इवॉल्विंग एंड रेगुलेटिंग। ओके, हाँ। ऑल ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, मतलब पहले द अर्लीस्ट, द फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेट मी कंसिडर यूनिसेलुलर सेल, मे बी अ बैक्टीरिया एंड द प्रेजेंट ह्यूमन बींग, सबके बॉडी में जेनेटिक मटीरियल है डीएनए।
बैक्टीरिया के बॉडी में भी डीएनए है, फंगाई के बॉडी में भी डीएनए है, प्लेनेरिया के बॉडी के अंदर भी डीएनए में, हमारे बॉडी के अंदर भी क्या है, डीएनए। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म में उसके बॉडी में होगा डीएनए, लेकिन डीएनए का नंबर अलग अलग होगा। हमारे बॉडी में 46 डीएनए, इसीलिए हमसे 46 क्रोमोसोम्स बोलते हैं। वही ऑनियन में होता है 16 क्रोमोसोम्स, स्पाइडर में होता है 101 क्रोमोसोम्स, सॉरी 150 क्रोमोसोम्स। मतलब ये नंबर अलग होता है लेकिन मटेरियल क्या है, सेम। समझा? अगर आपके पास एक कॉटन का क्लॉथ है, कोई टी शर्ट बनाता है, कोई उससे पैंट बनाता है, कोई उससे सलवार कमीज सिलवाता है, somebody uses it as a साड़ी, लेकिन मटेरियल क्या है, कॉटन ही है ना। वैसे ही मटेरियल सेम है लेकिन वेरिएशन अलग अलग है। समझा? एवरीबडी क्लियर टिल हियर? ओके। Teacher, do viruses have DNA? They have both DNA. Some of them are having DNA, some of them are having RNA. The COVID virus is having RNA as a genetic material. That's why we don't consider virus as a living. If all the viruses had DNA and they had some organization in them, if they showed metabolism, if they had consciousness, then we would say it is living. So that's why it is still a doubt. Okay? आप लोग ये फोर्थ क्वेश्चन कर सकते हो। ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। ये किया ना, ये किया ना, नहीं, हाँ ये करो, ये नहीं किया। एक्सटर्नल क्या है? रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, कॉन्शियसनेस। वेरी गुड। इसमें ये थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा ट्राई करो। मतलब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको चूज कर, 4 स्टेटमेंट दिया है, आपको बोलना पड़ेगा कि हाउ मेनी आर इनकरेक्ट, मतलब हाउ मेनी आर रॉन्ग। क्लामाइडोमोनास मतलब एक आल्गे है जो यूनिसेलुलर है। इट्स अ यूनिसेलुलर आल्गे, ग्रीन आल्गे। तुम बायो लेना चाहती है या कंफ्यूज्ड हो? बायो ही लेना चाहती है ना? तुम लोगों ने तो किया है ना, ये नहीं किया था? ऑप्शन बी। ओके, 2 आर इनकरेक्ट यू से। एवरीबडी? ओके, लेट्स सी। Isolated metabolic reactions in vitro, मैंने क्या बोला? in vitro are living things. No, they are not living things, they are living reactions. Okay, so first statement is completely wrong. Reproduction is synonym with growth in Chlamydomonas. What did I say? Chlamydomonas, a unicellular algae. It's correct. Reproduction and growth are correct. Okay, so that is correct. Reproduction is an all-inclusive defining feature of living organism. Wrong, it is an exceptional feature. So 2 are wrong. Extrinsic growth cannot be taken as defining property of living organism because extrinsic growth is shown by non-living. So that statement is correct. So option B. Very good. ये किया था ना? हाँ. Can you do this? Is the slides visible? दिख रहा है ना? आपको स्टेटमेंट ए पढ़ना है, स्टेटमेंट बी पढ़ना है और देखना है कि स्टेटमेंट बी
इज इट अ रीजन फॉर स्टेटमेंट ए? गिव द रीजंस किया होगा ना, गिव रीजंस किया होगा ना, वैसे ही यू हैव टू सी वेदर द स्टेटमेंट बी इज अ रीजन फॉर स्टेटमेंट ए. मे बी एसएससी पीपल आर सीइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम. ये आईसीएसई में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. ओके, बट नाउ यू आर लव टू गेट यूज्ड टू इट. टाइम लो, अच्छे से सोचो. पहले क्या करो, स्टेटमेंट ए पढ़ो, अगर सही लग रहा है स्टेटमेंट बी पढ़ो. तो दो ऑप्शन तो हट गया. उसके बाद देखो कि वो फर्स्ट स्टेटमेंट आंसर कर रहा है क्या, उसके लिए रीजन, गिव द रीजन. कौन सा है ऑप्शन? ऑप्शन 2 लग रहा है. कितने लोगों को ऑप्शन 2 लग रहा है? 2 लोगों को. तुझे क्या लग रहा है? 2 लग रहा है. ठीक है, पढ़ देखेंगे. In a single celled organism, we are not clear about the usage of 2 terms, growth and reproduction. Correct. कोई growth बोलता है, कोई reproduction बोलता है. So first statement is correct. When it comes to unicellular organism like bacteria, unicellular algae or amoeba, reproduction is synonym with growth. That is increase in number of cells. When it comes to ओके. अभी आपको पता करने के लिए वन इजी मेथड आई टेल यू. रीड द फर्स्ट स्टेटमेंट, एड बिकॉज एंड कंटिन्यूसली रीड द सेकेंड स्टेटमेंट. देखो, इन अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वी आर नॉट क्लियर अबाउट द यूसेज ऑफ 2 terms, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, बिकॉज when it comes to unicellular organism like bacteria, unicellular algae or amoeba, reproduction is a synonym with growth, that is increase in number of cells. It is a reason, because increase in number of cells is growth, increase in number of cells is a reproduction. So statement first option is correct. Got it? Okay. ये किया था, ये भी किया था. हाँ, करेक्ट. बिकॉज ये कहाँ हो रहा है? टेस्ट ट्यूब दिया है. रिएक्शन को छोड़ दो, टेस्ट ट्यूब दिया है. सो इट इज कंसिडर्ड टू बी इन विट्रो एंड लिविंग रिएक्शन. एवरीबडी एग्रीज? ओके. ये हाँ, मेटाबॉलिज्म. What is true with respect to consciousness? Prokaryotic organisms do not respond to environmental cues. पता है क्या है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म? They are not too much developed. बैक्टीरिया. Bacteria. No, that's wrong. Bacteria shows response to environment. तो it is all organisms handle chemicals entering their bodies. मतलब आपके बॉडी में कोई केमिकल्स आया, your body is telling you, मैंने एसिड गिराया आपके बॉडी पर, जलन होता है ना. So you are able to take this, you are able to understand what is happening. So that is consciousness. Okay. Next, let's go to the next topic, that is diversity of living organism. इससे पहले आज फर्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी, बिकॉज 4 लोगों का फर्स्ट क्लास है. अगर आप बायोलॉजी करना चाहते हो तो आपको ये टेक्स्ट बुक खरीदना पड़ेगा. नीट, आप सबको नीट करना, यू ऑल वांट टू डू गिव नीट एग्जाम ओनली, नो? ऑल 4 ऑफ यू आर नॉट श्योर? हाँ, यस, ओके. हाँ, ऐसा होता है, ऐसा नहीं. ओके. हाँ, तो ये टेक्स्ट बुक आपको खरीदना पड़ेगा, क्योंकि नीट के लिए हम एसएससी एचएससी नहीं पढ़ते हैं. वी रीड सीबीएसई सिलेबस, दैट इज एनसीईआरटी. सो यू हैव टू गेट दिस बुक
11th वाला बुक आपको कोई भी स्टेशनरी शॉप में मिलेगा. ओके, बाय दिस चेक वेदर, पहले खरीदने से पहले आप देखो कि देयर शुड बी हाउ मेनी चैप्टर्स देयर. यहाँ पर कंटेंट पेज में चेक करो कि वहाँ पर 19 चैप्टर्स होना चाहिए. 22 वाला भी मिलता है, वो ओल्ड ये है. तो आपको 19 चैप्टर्स वाला टेक्स्ट बुक खरीदना पड़ेगा और 2 सेपरेट बुक्स रखना पड़ेगा 200 पेजेस, बॉटनी के लिए, जूलॉजी के लिए. कोई पार्टीशन मत करो, सिलेबस इज एनॉर्मस, वेरी वास्ट सिलेबस इट इज़. आपको ये शायद 200 पेजेस भी कम ही पड़ता है. ओके, सो बॉटनी के लिए अलग रखो, जूलॉजी के लिए अलग रखो. जैसे टाइम टेबल अनाउंस करते हैं, यू हैव टू ब्रिंग इट. टेक्स्ट बुक एंड नोट्स इज़ वेरी कंपल्सरी. अलॉन्ग विद दैट उस चैप्टर का मॉड्यूल जो आपको दिया है ना, जिन लोगों का पेमेंट हुआ है, जिन एडमिशन हुआ है, ये मॉड्यूल में क्या होता है कि दिस इज़ अ वेरी नाइस बुक. इट इज़ हैविंग ऑल द क्वेश्चंस, नीट लेवल के क्वेश्चंस है यहाँ पर. हर एक चैप्टर का 300 क्वेश्चंस होते हैं. तो जैसे चैप्टर हो रहा है या फिर चैप्टर हो गया, आपको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा. ओके, यू नीड टू प्रैक्टिस दिस. सो नीट के लिए जैसे आप लोगों ने 10th में आप क्या करते थे, टेक्स्ट बुक खोलते थे, नोट्स खोलते थे, उसका आंसर्स पढ़ते थे. नीट के लिए ऐसा नहीं है, इट्स अ कॉन्सेप्ट बेस्ड एग्जाम. अभी आपको क्वेश्चन से पता चला कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं. MCQs आते हैं, करेक्ट, लेकिन एवरीथिंग इज कॉन्सेप्ट बेस्ड. अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से आया देन यू कैन आंसर. ओके, तो कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड है. कोई भी मग अप, कोई भी ऐसा नहीं है शायद SSC में उतना ही पॉइंट्स लिखना था तब भी मार्क्स मिलता था, ऐसे कुछ मैंने सुना है. यहाँ पर ऐसा नहीं है. आपको हर एक चैप्टर यू शुड बी अवेयर. अभी जैसे देखो, मैंने अभी कॉन्शियसनेस पूछा, यू हैव टू नो अबाउट इट, यू शुड एक्सप्लेन मी व्हाट इट इज. अगर आप एक्सप्लेन कर सकते हो देन उसको आपको समझ में आया. ओके, सब समझकर पढ़ना पड़ेगा. रट्टा मारना इज नॉट फॉर बायोलॉजी, दैट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग पीपल टेक. ओके, देयर इज नो मगिंग अप इन बायोलॉजी. ठीक है, और एक बुक है इसके साथ, MTG फिंगर टिप्स. ओके, ये ऐसे मॉड्यूल में क्वेश्चंस है ना, उसमें भी क्वेश्चंस है. तो मॉड्यूल के साथ वो भी करो, देन योर बायोलॉजी यू कैन इजीली स्कोर 360 ऑन 360. ओके, हर एक चैप्टर के बाद यू हैव टू कीप ऑन सॉल्विंग. और जैसे मैंने आज इतना सिखाया, घर जाओ, जिनके पास मॉड्यूल है आंसर करो ये क्वेश्चंस. एंड यू हैव टू डू डेली लेसन्स. ऐसा नहीं कि अच्छा कब एग्ज़ाम अनाउंस करते हैं, टेस्ट अनाउंस करते हैं तब पढ़ना नहीं है. अभी आप लोगों ने SSC के लिए दिसंबर से ना सीरियस हो गए थे पढ़ने के लिए, करेक्ट. उससे पहले तो मज़ा किया था. कोई बहुत सारे बच्चे फरवरी से शुरू किया है, तो ऐसा नहीं चलेगा. ओके, आज से एडमिशन हुआ ना, आज से आपको पढ़ना पड़ेगा. आज से मैंने क्या पढ़ाया है कर जाओ, एक बार देखो, मॉड्यूल सॉल्व करो, हो गया उधर ही. सो यू हैव टू डू डे टू डे रिविजन्स. डे टू डे अपडेट होना चाहिए. अभी नेक्स्ट मेरा क्लास कब अनाउंस होता है, बिफोर द क्लास मॉर्निंग गेट अप एंड जस्ट सी व्हाट मैम हैज थॉट एंड कम टू द क्लास. तब क्या मिलेगा, कंटिन्यूटी मिलेगा. और ये सिर्फ अभी जोश से 1-2 दिन मत करो. दिस हैज़ टू बी कंसिस्टेंट 2 साल के लिए. ये एग्ज़ाम में कौन पास होते हैं, जो कंसिस्टेंट रहते हैं. मतलब आपको रोज़ इतना ही पढ़ना पड़ेगा, एग्ज़ाम हो या ना हो, टेस्ट हो या ना हो, आपको उतना ही घंटे पढ़ना पड़ेगा. अगर आपके पास कंसिस्टेंसी है 2 साल के लिए तो हो जाएगा. इट्स इक्वलेंट टू, देखो अभी कोई आदमी बॉडी बिल्ड कर रहा है, जिम जा रहा है, बॉडी बिल्ड कर रहा है, तो वो एक दिन में हो जाएगा क्या बॉडी? नहीं, उसको वही डाइट फॉलो करना पड़ेगा, वही जिम में रोज़ 2 घंटे बिताना पड़ेगा. नो शुगर फूड, राइट, शुगरी सब्सटेंसेस नॉट टू ईट. वो एक डाइट है, वो एक रिजीम है ना. एंड दे हैव टू फॉलो द सेम थिंग. अभी देखो हमारे रिसेंटली वी हैड अ वॉर. डू यू थिंक सोल्जर्स प्रैक्टिस 1 week बिफोर? They were doing it daily, every day. That's their drill, keeps on happening. That's why we won it. So if you want to win, 2 years you have to do the same thing. अगस्त सितंबर के बाद कंटाल आता है, पता है मुझे, होता है, लेकिन नहीं, यू हैव टू फोकस हियर. मुझे क्या करना है, मुझे 600 अबाव लेकर आना है, मुझे एक फ्री रेप्यूटेड गवर्नमेंट कॉलेज में फ्री सीट मिलना है. ये फोकस करो, ये गोल रखो और रोज़ प्रैक्टिस करो. कुछ मुश्किल नहीं है, आराम से हो जाएगा.
ओके बहुत लोग बोलते हैं नीट में बहुत कंपटीशन है, 20 लाख लिखते हैं, 1 ही लाख सीट है। उस 20 लाख लोगों में से सीरियस जो है ना, दैट्स ओनली 1.5 to 2 lakhs। 20 लोग ऐसे मस्ती में ही लिख देते हैं। ओके, सो सीरियस रहो और रोज प्रैक्टिस करो, यू कैन 100% डू इट। ठीक है, दिस इज द ओनली सीक्रेट फॉर नीट स्कोरिंग नीट इज एनीबडी यू आस्क द टॉपर्स, दे से कंसिस्टेंसी। वो लोग बोलेंगे हम रोज 6 घंटा पढ़ते थे। ओके, एसएससी जैसे दिसंबर से शुरू मत करो। ठीक है, ओके फाइन। हम अभी आगे नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे, दैट इज डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपको पता है हमारे वर्ल्ड में कितने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। सो मेनी ऑफ देम आर नॉट विजिबल इन आवर नेकेड आइज ओनली, वी कांट नेम ऑल्सो, सो मेनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर देयर। एंड जैसे देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म का नंबर कैसे इंक्रीज होता है, जैसे सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। अगर मैंने एशिया में ज़्यादा, एशिया कॉन्टिनेंट में ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिजम्स है या फिर ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिजम्स है देख लिया, तो ऑब्वियसली कहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म ज़्यादा है, एशिया में कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया। क्यों? क्योंकि एशिया इज बिगर। तो जैसे सरफेस एरिया इंक्रीज होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का नंबर भी इंक्रीज होता है। हाँ कुछ बोली, ठंडी लग रहा है, एसी बंद करो, एक ही एसी है, बंद करो। श्योर सबको ठंडी लग रही है सच्ची में? ठीक है, बंद करो या ना करो, क्योंकि एक ही एसी है। ओके, विल पुट इट ऑफ फॉर सम टाइम। एसी रिमोट है, बंद हुआ, अरे खुल गया था, थोड़ी देर में गर्मी लगेगी अभी। ओके हाँ, तो नाउ लेट्स सी हाउ मेनी मिलियंस ऑफ स्पीशीज आर देयर। तो आज तक डिस्कवर्ड स्पीशीज मतलब जितना हमें पता है, इसका साइंटिफिक नेम है, इनके बारे में रिसर्च हुआ है, तो आज तक जितना स्पीशीज पता है दैट इज 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज। So many species we know their scientific name। आपने scientific name तो सुना होगा ना, जैसे Homo sapiens, Felis domestica कैट का है, तो इसे scientific name दिया है for 1.7 to 1.8 मिलियन species। अभी भी 7 मिलियन species इस वर्ल्ड में हैं जो शायद ट्राइबल पीपल को पता होगा, जो लेमैन को पता होगा, लेकिन उसका साइंटिफिक रिसर्च नहीं हुआ है। ओके, सो वी से 7 मिलियन स्पीशीज अभी भी डिस्कवर करना है। कितने स्पीशीज डिस्कवर हुआ है? 1.7 मिलियन। ओके हाँ, लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज आर नॉट येट डिस्कवर्ड, हेंस वी नीड अ ब्रांच विच डील्स विद द करेक्ट आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। हमें एक ब्रांच चाहिए जो इन 7 मिलियन स्पीशीज को आइडेंटिफाई करेगा, एक प्रॉपर कैटेगरी में डालेगा, प्लस उसका नाम देगा। नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या है? नेमिंग। ओके हाँ, ये आप कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन, कौन से सबसे ज्यादा है? अनडिस्कवर्ड स्पीशीज। नहीं, टोटल ज्यादा है। 7 मिलियन प्लस 1.7 1.8 करो तो ज्यादा हुआ ना, 8.8 मिलियन हो गया। सो टोटल ज्यादा है, अनडिस्कवर्ड प्लस डिस्कवर्ड। करेक्ट? ओके हाँ, ये करो। I'll tell you. कौन सा? बी ए। Plants responds to light. Everybody agree? It responds to water. You know, roots grow towards water. Yes, it responds to temperature. Yes, it responds to pollutants. Correct. But it responds to other organisms also, no? जैसे pathogens उसको attack किया
तो प्लांट में आप देख सकते हो कि फ्रूट में डिस्कलरेशन होगा जब भी कीड़े अटैक करेंगे, या फिर कोई हर्बीवरस एनिमल जब खाता है तो इसीलिए उसको खाने से अवॉइड करने के लिए प्लांट क्या करेगा, अपने ऊपर हेयर्स ग्रो करेगा या थॉर्न्स ग्रो करेगा. सो आंसर इज बी. इट शोज रेस्पॉन्स टू अदर ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो. हाँ, ओके फाइन. अभी हम पढ़ेंगे व्हाट इज क्लासिफिकेशन. सो क्लासिफिकेशन इज ग्रुपिंग. आपको पता है ग्रुप करना. तो हमें आज तक कितने स्पीशीज पता है, 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज. हर एक ऑर्गेनिज्म को ग्रुप करना वो एक ईजी नहीं है. इट्स नॉट ईजी. सो इट इज़ इम्पॉसिबल टू स्टडी ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म. हर एक ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करना 1.7 1.8 मिलियन स्पीशीज के एवरीबडी टू स्टडी इट इज़ डिफ़िकल्ट. सो हम क्या करेंगे, हम उनको जो जो सिमिलर दिखते हैं उनको एक एक ग्रुप में डालेंगे एंड दैट इज़ नोन एज क्लासिफिकेशन. वन ईजी एनालॉजी आई गिव यू. आप अपने वार्डरोब कबर्ड कैसे अरेंज करते हो कपड़े का, बेस्ड ऑन द क्लोथ्स. नो, सबका कबर्ड अरेंज्ड है ना, ऑर्गेनाइज्ड होता है ना. तो जैसे कैजुअल वेयर एक साइड पर, जीन्स एक साइड पर, पार्टी वेयर एक साइड पर, वेस्टर्न वेयर एक साइड पर, ट्रेडिशनल वेयर एक साइड पर, ऐसे अरेंज करते हो. क्यों अरेंज करते हो? आपको इजी लगेगा. अगर बोला कि क्लास में कि आज कॉकटेल पार्टी है तो आपको इजीली वो कपड़ा मिलेगा. अगर अरेंज्ड नहीं है ढूंढना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा. तो इसीलिए हम अरेंज करके रखते हैं ना. वैसे ही हम ये जो स्पीशीज़ हमें पता है 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज़, उनको अगर हमने प्रॉपर ग्रुप्स में अरेंज किया तो हमारे लिए इजी होगा इनके बारे में पढ़ने के लिए. अभी देखो, कैट, टाइगर, लायन, पैंथर, लेपर्ड, ये एक जैसे दिखते हैं ना. कुछ तो सिमिलैरिटी दिखता है उनमें, उनको मैं एक ग्रुप में डाल देती हूँ. तो अगर कोई एक नया ऑर्गेनिज्म मिला जो बिल्कुल इनके जैसे दिखता है तो मैं उसी ग्रुप में डाल सकती हूँ ना. अभी मुझे कैट के बारे में पढ़ना है तो अगर मैंने पूरा कैट फैमिली के बारे में पढ़ा तो कैट का भी पॉइंट्स आया ना. सो दैट इज़ वाई वी डू क्लासिफिकेशन. वाई आर डूइंग क्लासिफिकेशन? फॉर आवर बेनिफिट ओनली, टू सेव आवर टाइम, let it be organized, so it will be easy for us. Okay, so we need to classify organisms to group and category. Okay, the grouping is done on the basis of features of an organism. Hence we need to study the organisms from the group of the entire to be studied, has been studied. Okay, अभी देखो, this is each and every organism and this is how we have grouped. हर एक ऑर्गेनिजम्स के बारे में अगर मैंने बोला सबके फीचर्स लिखो तो आपको क्या लगेगा, आपके बुक में अगर आपने लिखा मे बी इट विल टेक 50 pages टू राइट अबाउट ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म. बट नाउ आई विल सी सम सिमिलैरिटी बिटवीन कैट, डॉग, मंकी, हॉर्स, टाइगर, फॉक्स, लायन, डॉल्फिन and cow. What similarities I see? Like they have fur, they have pinna which is known as pinna, पता है ना pinna. They have mammary glands to correct, they have backbone, mammary glands and they have backbone. तो ये सारे features same हैं. तो I will put them in one group, that is mammals. अभी next parrot, ये वाला bird, turkey, hen, rooster. इनमें similarities है. What similarities? They have a beak, they have feather, they can fly, their forelimbs are developed into wings. कुछ similarities है, then I'll put it under birds. तो अगर ऐसे grouping किया तो अभी देखो, now if I tell you write down the points about tiger. So if you write down mammal points, 90% they are the same points. 2-3 एक्स्ट्रा ऐड कर लो टाइगर का, हो गया है ना. तो ग्रुपिंग किया तो ऑर्गेनाइज लगेगा, इजी होगा पढ़ने के लिए भी. समझ में आया क्यों हम क्लासिफिकेशन करते हैं? ओके, हाँ ठीक है. अभी आपको ये 2 इम्पॉर्टेंट टर्म्स है जो आपको समझना पड़ेगा. ये लास्ट क्लास में किया था क्या? हाँ, एक है कैटेगरी और दूसरा है टैक्सॉन. व्हाट इज कैटेगरी?
any type of group is known as category. Okay, and what is taxon? It is a type of category which has a characteristic feature and name. confuse हो रहा है ना क्या है ये? ठीक है, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताती हूँ. अगर मैंने बोला ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, कोई भी हो सकता है स्टूडेंट, आप भी स्टूडेंट्स हो, एकेडमिक स्टूडेंट्स हो, आप कोई स्पोर्ट्स कर रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो, वो बच्चे भी स्टूडेंट्स ही है. म्यूज़िक सीख रहे हैं, वो बच्चे भी स्टूडेंट ही है ना. ड्राइंग सीख रहे हैं, वो भी स्टूडेंट्स ही है, वो सब स्टूडेंट्स हैं. तो अगर मैंने ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स बोला, आपको समझ में नहीं आएगा कि किसको बोलूँ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स. अगर मैंने आपको एक प्रॉपरली बोला ग्रुप ऑफ फुटबॉल स्टूडेंट्स, तो आप क्या इमेजिन करोगे? बच्चे के पास एक बॉल होगा, शॉर्ट्स पहनेंगे, लंबे सॉक्स पहनेंगे, है ना, शूज़ होगा, यू विल इमेजिन. अगर मैंने बोला ग्रुप ऑफ पियानो स्टूडेंट्स, तो क्या इमेजिन करोगे? पियानो, बुक, ऐसे इमेजिन करोगे. तो जो आप इमेजिन कर सकते हो वो है टैक्सॉन. जो आप इमेजिन करने के लिए मुश्किल हो रहा है वो है कैटेगरी. जैसे मैंने बोला ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, क्या इमेजिन करोगे? ये he will imagine plants, somebody will imagine animals, somebody will imagine bacteria, कुछ भी हो सकता है. तो अगर मैंने सिंपल बोला ग्रुप ऑफ कैटल, तो क्या इमेजिन करोगे? काउ और स्टेबल, ऐसे इमेजिन करो. जो आपको इमेजिन करने के लिए हुआ वो है टैक्सॉन, जो इमेजिन करने के लिए मुश्किल लग रहा है वो है कैटेगरी. जैसे ग्रुप ऑफ अल्सेशियंस. अल्सेशियन क्या है? इट्स अ ब्रीड ऑफ अ डॉग. जर्मन शेपर्ड बोलते हैं ना, वो अल्सेशियन है. अगर मैंने ग्रुप ऑफ मैमल्स बोला, इमेजिन कर सकते हो ना, यू कैन से सम ऑफ द कैरेक्टर्स. ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स, यू कैन से सम कैरेक्टर्स. So taxon is the one you can imagine and category can't imagine. Okay, so let's see what are the features of a taxon. A taxon is such a category which has name and features. So taxon has name and features. It has rank also. Like if I tell, so these are the features of taxon. समझा? Okay. Which of the following is a taxon यहाँ पर? All of the above. Okay. हाँ. Next, taxon is a all है ना? Rank भी है. Category with name and feature. Rank in taxonomic hierarchy, same thing. All. Which is a taxon? कौन सा आप इमेजिन कर सकते हो? हाँ, करेक्ट, एनिमल. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सेल्फ कॉन्शियसनेस? एप्स के पास नहीं है क्या? नहीं, सिर्फ ह्यूमन के पास. अभी ये जो ब्रांच जो क्लासिफिकेशन करता है उसको बोलते हैं टैक्सोनॉमी. हमने स्टार्टिंग पढ़ा ना कि हमें एक ब्रांच चाहिए जो आइडेंटिफाई करता है, क्लासिफिकेशन करता है, नॉमेनक्लेचर करता है. उसी ब्रांच को बोलते हैं हम taxonomy. So it is a branch of science which deals with the process of classification of living organisms. Next is basis of taxonomy. 4 basis है. इसको बोलेंगे हम steps of taxonomy. तो मुझे एक organism मिला जो इतना छोटा है. Let me just draw something for you. माउस जैसा दिखता है, इसने बोला ये प्रोक्यूपाइन जैसा दिखता है. मतलब हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये इसके जैसे दिखता है या इसके जैसे दिखता है, जो हमारे पास ऑलरेडी है, इसीलिए हमें क्लासिफिकेशन करना चाहिए, है ना. तो आप अभी क्या करोगे? माउस वाला टेबल खोलोगे और कंपेयर करोगे कि माउस में ये फीचर्स है. ये क्या करेगी? प्रोक्यूपाइन वाला टेबल खोलेगी और उसमें कंपेयर करेगी. ओके, उस स्टेप को बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन. बाद में हमें पता चलेगा कि ये प्रोक्यूपाइन से ज़्यादा माउस के सिमिलैरिटी है. ओके, तो हम कौन से कैटेगरी में डालेंगे? माउस के ग्रुप में डालेंगे. उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन. बाद में उसको एक नया नाम रखेंगे, क्योंकि माउस तो ब्राउन कलर का या वाइट कलर का होता है, ये तो ग्रीन कलर का है, तो उसको एक न्यू नेम रखेंगे. ओके, सो व्हाट इज द स्टेप्स यू हैव टू फॉलो? पहले कोई नया ऑर्गेनिज्म मिलेगा तो क्या करोगे? हाँ,
then it we do, then we do, then पहले नाम नहीं रखेंगे, ठीक है. First only we won't do one step. It is a step-wise process, and you have to follow these steps. समझा? Okay. हाँ. Next हम देखते हैं कितने type of taxonomies हैं. जो earliest, देखो taxonomy एक नया subject नहीं है, आप लोग शायद ये word आज ही सुन रहे हो, लेकिन ये नया आजकल से बना हुआ नहीं है, ये बहुत पहले से था, है ना. आप भी आपके स्कूल डेज में आपने पढ़ा होगा कि स्कूल में या फिर जूनियर केजी में दिस इज़ वाइल्ड एनिमल्स, दिस इज़ डोमेस्टिक एनिमल्स. हमने कैसे क्लासिफाई किया, ये एग लेइंग है, ये मिल्क गिविंग है, कैसे क्लासिफाई किया, हमारे यूज़ के बेस में ना. सो पहले भी टैक्सोनॉमी होता था, इट वॉज बेस्ड ऑन ह्यूमन नीड्स. ह्यूमन को कैसे चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे क्लासिफाइड. जो फेरोशियस होता है उनको वाइल्ड एनिमल्स बुलाया, जो इसे टेम होता है, काम होते हैं, उनको डोमेस्टिक बुलाया. डोमेस्टिक में भी जिसको हम ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ करते हैं, जैसे डोंकी, हॉर्स, बुल्स, इनको हम क्या बोला ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और कैमल, इनको हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए बुलाते हैं. जो दूध देते हैं जैसे बफेलो, काउ, गोट, कैमल, डोंकी भी दूध देता है ना, उनको हम क्लासिफाई करते हैं टू हाँ मिल्क यील्डिंग एनिमल्स. हाँ, दूध तो टाइगर भी देता है, जाकर निकाल सकते हो क्या टाइगर का दूध, है ना. टाइगर भी मैमल है, लेकिन क्यों हमने उसको वाइल्ड में दे दिया, हम जाकर उसको दूध नहीं निकाल सकते. वो दूध देता है अपने बच्चों को, हमारे लिए नहीं देता है. लेकिन गाय इज अ वेरी काम एनिमल, इट विल अलाउ यू टू टेक मिल्क. ओके, सो इसीलिए हमने उसको मिल्क गिविंग एनिमल्स बोला. समझा? हाँ. तो जैसे घर पे रखते हैं उनको पेट्स, जैसे डॉग, कैट, तो हमने क्लासिफाई कैसे किया, जैसे हमें चाहिए वैसे हमने क्लासिफाई किया. वुल गिविंग एनिमल्स ऐसे. प्लांट्स में भी ऐसे, जो ऑयल यील्डिंग है, कोकोनट, मस्टर्ड, सनफ्लावर, कैस्टर ऑयल किसके लिए देते हैं, हमारे लिए देते हैं, तो हमने इसको क्लासिफाई के लिया. सीरियल्स को. सो अर्ली टैक्सोनॉमी वाज देयर, बट इट वाज बेस्ड ऑन ह्यूमन नीड्स. बट दिस इज नॉट करेक्ट. जैसे मैंने बोला अभी, टाइगर भी दूध देता है भाई, लायन भी दूध देता है, तो हम उसको भी मिल्क यील्डिंग एनिमल्स बोलना चाहिए ना, अकॉर्डिंग. जस्ट हमें नहीं देता है तो इसलिए हमने उसको सेपरेट रख दिया. सो अर्ली टैक्सोनॉमी इज नॉट कंप्लीटली करेक्ट अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक वे में करेक्ट नहीं है. ह्यूमन भी मिल्क देता है ना. कैन वी क्लासिफाई देम एज एनिमल्स? नो, दे आर एनिमल्स ओनली, बट वी थिंक वी आर ऑन द हायर साइड. ओके. हाँ. सो इसीलिए मॉडर्न टैक्सोनॉमी आया. अर्ली टैक्सोनॉमी सही नहीं था, इसीलिए क्या आया, मॉडर्न टैक्सोनॉमी. आर यू फॉलोइंग? समझ में आ रहा है ना, बिकॉज यू केम लिटिल लेट. हाँ, ये नया टॉपिक है, वो जो उन लोगों ने किया वो अलग टॉपिक था. ओके, मॉडर्न टैक्सोनॉमी. सो ये मॉडर्न टैक्सोनॉमी किस पर बेस्ड था, ये साइंटिफिक वे पर बेस्ड था. यहाँ पर हम देखते थे सेल कैसा है, हर एक ऑर्गेनिज्म का सेल अलग होगा ना. वी विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल. We will see how their internal organs are. We will see how their external organs are. Okay? We will see their developmental details. Developmental details मतलब embryological details. How it is forming from an embryo to an adult. आप ऐसे देखोगे तो fish, amphibian, reptile, aves, mammals, इनको vertebrates बोलते हैं ना, ये आपको पता है, SSC में था. Why did we classify them as vertebrates? Because their embryos look alike. एक 1 month pregnant women का स्कैनिंग करो एंड फिश का स्कैनिंग करो, एम्ब्रियो सेम रहेगा. पता है हम सबको pharyngeal gill slits थे, lungs नहीं था when we were 1 month old, 1 month fetus. Gill slits, that's why in the amniotic fluid we could breathe. Fluid में रहते थे ना अंदर. हाँ, there was a tail which is not there. Now अभी टेल बोन छोटा हो गया, पहले हमारे पास एक टेल था. सो दिस शोज दैट वी आर रिलेटेड. दिस शोज दैट वी आर एवोल्यूशनरी रिलेटेड. वी कम फ्रॉम अ सिंगल एंसेस्टर. तो वो डिटेल्स भी देखते हैं. इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन मतलब कहाँ रहता है वो ऑर्गेनिज्म, किस हैबिटेट में रहता है, वो भी देखते हैं. तो मॉडर्न टैक्सोनॉमी में हम
क्या देखते हैं? सेल स्ट्रक्चर देखते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, डेवलपमेंटल डिटेल्स एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, ये सब कुछ देखते हैं. ओके अब ये थोड़ा क्वेश्चन करो, एक ब्रेक है हमारे क्लास में, ब्रेक इज क्वेश्चंस. ओके हाँ, तो अब बोर नहीं हो पाएंगे. हमें पता है, यू ऑल डोंट नो क्लासिफिकेशन, बट आपको बायोलॉजी थोड़ा क्लासिफिकेशन का आइडिया है, 10th में था आप लोगों को. सो ऑन दैट बेसिस ओनली ऑल आंसर, यू कैन आंसर दिस. Both the statements are true. Others, any other answers? Arush, you want to answer? Ayusha or Arush? Arush. You have any other answer? No? Everybody goes, you, Sudhanshu, no? Suyash, same answer? Both are true. Everybody will agree? Okay. So dog, what's your name? Nandini. Okay. Which school? Mary Matlet. We have Kalina. We have another student from Mary Matlet. तुम हो क्या? तुम कौन से हो? माउंट मेरी. मेरी मैकलेट की एक स्टूडेंट है, फर्स्ट बैच में है. तो ना हंदी कलीना में ना. हाँ. डॉग, लायन, मैमल आर टैक्सॉन. कलीना से दूर नहीं पड़ेगा? कितना दूर लगता है? टाइम लगता है आधा घंटा रिक्शा में. लायन, डॉग, लायन, मैमल आर टैक्सॉन. करेक्ट है ना? आप जब डॉग बोलते हो, यू कैन इमेजिन, यू कैन टेल मी द कैरेक्टर्स. लायन ऑल्सो यू कैन इमेजिन, मैमल ऑल्सो यू कैन टेल. इंसेक्ट, मैमल, एनिमल्स आर टैक्सॉन एट डिफरेंट लेवल्स. करेक्ट है, क्योंकि मैमल में आता है इंसेक्ट एंड एनिमल में आता है इंसेक्ट एंड मैमल. लेकिन इंसेक्ट यू नो आपके क्लास में था, इनवर्टिब्रेट्स था. और मैमल को क्या बोलते हैं? वी हैव अ बैकबोन, वर्टिब्रेट. सो दे आर डिफरेंट टैक्स, डिफरेंट लेवल्स. करेक्ट. ओके. Second statement is false. Correct. Development details and ecological information is also the modern taxonomy studies. Correct. अभी पढ़ा. Food shelter किसका था? Not modern taxonomy. It was of early taxonomy. Okay. हाँ. Next third one. देखो तीन type of taxonomy. Early पता चला, modern पता चला. अभी है systematics. ये बनाया था Carolus Linnaeus in his book called as Systema Naturae. Carolus Linnaeus नाम का एक साइंटिस्ट ने अपने सिस्टेमा नेचुरा बुक में लिखा था. अभी ये क्या है? यहाँ पर कुछ भी लिखा है, आप वो सुनो मत. डेवलपमेंट, मॉडर्न टैक्सोनॉमी समझ में आया? मॉडर्न टैक्सोनॉमी प्लस एवोल्यूशन. अभी हम क्या करेंगे? ये सब पढ़ के हम रिलेट करेंगे कि ये ऑर्गेनिज्म सेम दिखता है, शायद इनका एंसेस्टर्स सेम हो. ये भी पढ़ते हैं ना हम एवोल्यूशन में, दैट वी ऑल केम फ्रॉम अ सिंगल ऑर्गेनिज्म. कैसे डाइवर्सिफिकेशन हुआ. तो इफ यू स्टडी डेवलपमेंटल टैक्सोनॉमी प्लस एवोल्यूशन, इट इज सिस्टमैटिक्स. सो व्हाट इज सिस्टमैटिक्स? प्लस मॉडर्न टैक्सोनॉमी. Modern taxonomy plus evolution is systematics. So human are interested to find out only not only groups of taxon, but also about relationship. Yes, we like doing that. कि okay, I came from that organism. We are also very interested to know about our ancestors, no? क्या पता आपके ancestor शिवाजी महाराज के महाराज थे, तो अच्छा लगेगा सुनने के लिए, है ना? हाँ, मेरे बॉडी में उनका खून है. तो हमें पता, we are human is very interested to know from where that's the lineage came. Okay? Systematics deals with the process of taxonomy plus evolutionary relationship. What is the other word for evolutionary relationship? Phylogenetic relationship. Okay? हाँ. देखो, ये क्या है? एक बर्ड है, हाइब्रिड है. अच्छा, हाइब्रिड है. हाँ, ये हाइब्रिड नहीं है, ये बहुत पहले बर्ड, करेक्ट, डायनासोर से आया हुआ बर्ड.
अभी डायनासोर किस ग्रुप में बिलोंग होता है? करेक्ट, रेप्टाइल्स. डायनासोर्स आर रेप्टाइल्स और बर्ड्स एव्स, है ना. तो रेप्टाइल से ही आया था बर्ड्स. सम ऑफ द रेप्टाइल्स व्हाट डिड दे डू? जो उनके 4 लिम्स है दैट टर्न्ड इनटू विंग्स. एंड देखो आप देख सकते हो अभी के बर्ड्स में, कैन यू सी देयर आर क्लॉज ओवर हियर. ऐसे क्लॉज नहीं होता है अभी के बर्ड्स में. वो डेवलपमेंट है, मतलब वो बीच में अटका हुआ है. इधर रेप्टाइल भी नहीं है, उधर बर्ड भी नहीं है, ट्रांजिशन जोन में है. देखो उसका रेप्टाइल का क्लॉज है. इतना लंबा पूंछ तो बर्ड में के पास नहीं होता है, और इसके पूंछ में हड्डी है. बर्ड की पूंछ इज मेड अप ऑफ फेदर, है ना. देखो उसके पैर में भी कितने लंबे लंबे क्लॉज है. उसके बीक देखोगे, बीक में दांत है. बर्ड्स के बीक में दांत नहीं होता है, रेप्टाइल्स में होता है. क्रोकोडाइल में देखो कितना शार्प शार्प दांत है. बर्ड का क्या फीचर है? फेदर्स है, बीक बना हुआ है, छोटा सा हेड है. ओके तो मतलब ये बर्ड और रेप्टाइल के बीच में था. इसका नाम था आर्कियोप्टेरिक्स. ओके सो दैट शोड दैट फ्रॉम रेप्टाइल्स केम बर्ड्स. यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज आवर एंसेस्टर, मैमल है एक. ओके तो आप देख सकते हो कि रेप्टाइल से some of them turned into mammals and some of them turned into birds. समझा? रेप्टाइल से ही आया था ये lineage. ये lineage systematics पढ़ता है. Got it? Not finding relationship. Why nomenclature? What is systematic? It is a type of classification. And classification में last step क्या है? Nomenclature. Okay? Not finding. Very good. ओके हाँ. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज. ये पढ़ाया था ना उस क्लास में. ओके प्लूरल फॉर्म ऑफ टैक्सॉन इज टैक्सा. सो अभी वी कांट से दीज आर टैक्सी नहीं बोल सकते हैं, वी से टैक्सा. बहुत सारे टैक्सॉन से तो उसको बोलेंगे टैक्सा. ओके तो हमारे पास है 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज. ऑब्लिगेट का मतलब इंपॉर्टेंट. Okay, there are 7 obligate categories, which is kingdom, phylum, class, order, family, genus, species. तो मैंने इसको कैटेगरी क्यों बुलाया? अगर मैंने किंगडम बोला, कोई तो बता सकता है कि मुगल एम्पायर, कुछ भी हो सकता है किंगडम, है ना. या आप हिस्ट्री से भी कनेक्ट कर सकते हो, या फिर साइंस से भी, बायोलॉजी साइंस से भी कनेक्ट कर सकते हो. तो अगर मैंने फैमिली बोला, यू माइट से अबाउट योर फैमिली, तो मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते हो. तो इसीलिए यहाँ जो भी मैंने लिखा है वो क्या है? कैटेगरी है. और इस कॉलम में जो भी लिखा है वो टैक्सॉन है, बिकॉज यू कैन डिस्क्राइब. ओके सो सबसे लार्जेस्ट कैटेगरी इज किंगडम. देखो कितने सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं किंगडम में, है ना. सो मेनी ऑर्गेनिजम्स आते हैं. सबसे स्मॉलेस्ट कैटेगरी है स्पीशीज. देखो एक ही ऑर्गेनिज्म है. ओके हाँ तो टू रिमेंबर दिस किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, आप एक निमोनिक भी लिख सकते हो. किंग फिलिप केम ओवर फॉर अ गुड सूप. किंग फिलिप, के फॉर किंगडम, फिलिप इज फॉर फाइलम, केम, सी इज फॉर क्लास, ओवर ऑर्डर, फॉर फैमिली, good, genus and species. Okay, that is a mnemonic to remember. लेकिन ये 2-3 बार लिख लिया तो याद हो जाएगा. ऑलरेडी याद भी है, आप लोगों ने किया है. ओके हाँ तो आपको याद क्या रखना पड़ेगा? आपको ये याद करना पड़ेगा कि जैसे मैं किंगडम से स्पीशीज आती हूँ, एज आई एम कमिंग फ्रॉम किंगडम टू स्पीशीज, what is happening to the number of organism? Decreases. अगर मैंने ऊपर गया, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर इंक्रीजिंग, है ना. अभी मुझे एक बताओ, टाइगर और वो स्पाइडर के बीच में ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है या फिर टाइगर और लायन के बीच में? टाइगर और लायन के बीच में. तो आई विल टेल यू वन स्टेटमेंट. एज आई एम कमिंग डाउन फ्रॉम किंगडम टू स्पीशीज, down the category, similar characters increases. सही बात है.
एज आई एम कमिंग डाउन फ्रॉम किंगडम टू स्पीशीज सिमिलर या फिर कॉमन कैरेक्टर्स इंक्रीजेस. इसका उल्टा क्या होगा? एज आई एम गोइंग फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम. हाँ, लेकिन what will happen to the general characteristics? General characteristics is more in kingdom compared to species. So as I am going from species to kingdom, general characteristics increases. Okay, समझा? Okay, अभी ये वाले क्वेश्चन करो. एक बार देख लो. First O, C, D. करेक्ट, सी डी एंड ई है ना. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हुआ? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है ना, वो भी लिविंग दिखाता है ना. विच ऑफ द फॉलोइंग अदर क्या? ये नहीं चाहिए. ये कर सकते हो क्या? नहीं, ये अभी नहीं कर सकते, बाद में करोगे. हाँ, ये करो, फर्स्ट क्वेश्चन करो. लीस्ट सिमिलर टू अनदर. स्पीशीज. सब लोग स्पीशीज ही बोलोगे? क्लास. मैंने क्या बोला? एज यू कम फ्रॉम किंगडम टू स्पीशीज सिमिलर कैरेक्टर्स इंक्रीजेस. तो यहाँ पर क्या पूछा है? लीस्ट सिमिलर, मतलब कहाँ पर सिमिलर कैरेक्टर्स बहुत कम है. तो यू हैव टू गो टू द बिगेस्ट. फैमिली से भी बड़ा क्या है? यहाँ देखो. विच इज बिग? फैमिली इज बिग और क्लास इज बिग? क्लास. करेक्ट. सो क्लास इज द राइट आंसर. बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, सबसे छोटा इज ऑलवेज द बेसिक यूनिट. स्पीशीज. Okay. As we go lower from kingdom to species, what happens to the number of characters at the taxon? As we go from kingdom, common characters increasing. Common and similar is the same. General different. Okay. Common and similar, kingdom to species इंक्रीजेस. ऐसे याद रखो, मतलब बाय हार्ट मत करो इसको. ऐसे याद रखो कि जैसे मैंने एग्जांपल बोला, टाइगर और जेलीफिश के बीच में ज्यादा सिमिलैरिटीज है या फिर एक टाइगर और दूसरे टाइगर के बीच में? टाइगर और दूसरे टाइगर के बीच में. तो टाइगर एक ही स्पीशीज में बिलोंग होता है ना, इसीलिए बाय हार्ट नहीं करना चाहिए. सिमिलर और कॉमन सेम ही है ना. व्हाट इज कॉमन एंड सिमिलर? सेम. लेकिन जनरल कैरेक्टर्स क्या होता है? ऐसे इंक्रीज होता है. ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, आपको अच्छे से समझना पड़ेगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग हाउ टू स्टडी नाउ फॉर नीट? कौन से क्वेश्चन था वो? ये वाला किया था ना. ओके, अभी एक मिनट बुक दो दे देते हो. बायोलॉजिकल कौन? स्पीशीज एक ही किया था क्या? स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर. ओ, इतना हुआ है. ठीक है, तो सबसे छोटे पढ़ेंगे हम, दैट इज स्पीशीज. सो व्हाट इज स्पीशीज? क्यों मैंने टाइगर और टाइगर को एक स्पीशीज में ऐड कर दिया? क्योंकि दो टाइगर एक जैसे दिखते हैं, है ना. मॉर्फोलॉजिकली दे आर सिमिलर. अब ये दोनों में भी देखने के लिए डिफरेंट दिखते हैं, लेकिन मॉर्फोलॉजिकली सेम है. दोनों के पास आईज आर देयर, दे हैव वन नोज, वन माउथ, one pair of hand, one pair of legs.
10 डिजिट्स इन ईच पेयर, करेक्ट? हाँ, तो इसीलिए ग्रुप ऑफ मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स आर स्पीशीज। मैक्सिमम सिमिलैरिटीज कहाँ रहता है? विल यू एग्री विद मी? हाँ, तो एग्जाम्पल इज मैंगनीफेरा इंडिका। मैंगनीफेरा इंडिका क्या है? मैंगो। कोई भी वैरायटी ऑफ मैंगो रखो, अल्फोंस रखो, कोई भी, अभी अलग अलग छोटे मैंगो, मुझे वैरायटीज का नाम पता नहीं, अलग अलग मैंगोज आते हैं, सब कोई भी मैंगो हो, खट्टा हो, मीठा हो, कुछ भी हो, सब क्या है? मैंगनीफेरा इंडिका। ओके, सारे वैरायटी मैंगनीफेरा इंडिका ही है। ओके, यहाँ पर मैंगीफेरा फर्स्ट नेम इज जीनस and the second name is known as specific epithet. Okay? हाँ. Pantheria leo is lion. Pantheria tigris is tiger. Panthera pardus is leopard. So एक leopard और दूसरे leopard में ज़्यादा similarities है या एक leopard और tiger में? दूसरे leopard में, इसीलिए leopard is one species. Okay? लेकिन उनका genus same है। देखो, फर्स्ट वर्ड इज जीनस, तो पूछ रही थी ना व्हाट इज जीनस? फर्स्ट वर्ड इज जीनस, सेकेंड वर्ड इज स्पीशीज। सो आई कैन से ग्रुप ऑफ स्पीशीज इज जीनस, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज इज जीनस। डोंट यू फाइंड सिमिलर क्लोजनेस, मतलब सम रिलेशन बिटवीन देम? लायन, टाइगर, पार्डस, है ना? तो इसीलिए दे बिलोंग टू अ सेम जीनस। ओके, नेक्स्ट इज जीनस। हाँ हाँ, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज ऑल्सो नोन एज फाइलोजेनी। हमने पढ़ा था ना फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, याद है सिस्टमैटिक्स में? करेक्ट, सिस्टमैटिक्स में याद है या नहीं? हाँ, देखो अभी ये सारे टाइगर्स है, इनमें ज़्यादा सिमिलैरिटी है, इससे और दूसरे भी इसमें ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है, और इनमें ज़्यादा सिमिलैरिटी, तो इसलिए ये अलग स्पीशीज़ है, ये अलग स्पीशीज़ है। 1 सेकेंड। हाँ, हेलो, टेल मी। हाँ, टेल मी। विले पार्ले? One now leaving the class. 4:30. Why? No, 2 classes. 4:30. Why? No, I'm coming. Okay, bye. हाँ, bye. क्या हुआ? बच्चे अनकंफर्टेबल है क्या? हाँ, अभी बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज का मतलब क्या है? ये अर्नस्ट मेयर, आपके टेक्स्ट बुक में पहला साइंटिस्ट, अगर टेक्स्ट बुक खरीदा नहीं है ना, जब खरीद लोगे तो ये पहला साइंटिस्ट दिख रहा है ना, ये है अर्नस्ट मेयर। इसको हम बोलते हैं, यहाँ दिया है, ही इज द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। हमको डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी इनको बुलाते हैं। इन्होंने ये डेफिनेशन दिया था। So he gave the biological concept of species. Now what does it mean is, let's say, अगर एक, किसको हम स्पीशीज बोलते हैं? अगर एक टाइगर दूसरे टाइगर ने रिप्रोड्यूस किया और उनको एक बच्चा हुआ, वो बच्चा भी फर्टाइल है, तब हम बोलेंगे टाइगर ए एंड टाइगर बी बिलोंग्स टू सेम स्पीशीज। इसीलिए म्यूल याद है? म्यूल किसका बच्चा था? डोंकी एंड हॉर्स। तो वो म्यूल क्या था? स्टेराइल था या फर्टाइल था? इनफर्टाइल था। इसीलिए डोंकी क्या है? अलग स्पीशीज है। हॉर्स क्या है? अलग स्पीशीज है। तो व्हाट डज इट हैपन? अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन इंटरब्रीड अमॉन्ग देमसेल्फ एंड प्रोड्यूस अ फर्टाइल यंग वन। ये अर्नस्ट मेयर ने बोला था। ओके, हाँ, ओके। नेक्स्ट इज जीनस। जीनस क्या है? जो स्पीशीज में कुछ सिमिलैरिटीज है उनको हम साथ में बोलेंगे एक जीनस। ओके, जैसे यहां पर देखो, इन तीनों में कुछ तो सिमिलैरिटीज है, इसीलिए दे बिलोंग टू जीनस पैंथेरा। समझा? ओके। 2 species of one genus have more similarities than 2 species of different genus. अभी कैट का जीनस इज फिलिस डोमेस्टिका कैट का नाम है, तो जीनस क्या हुआ? फेलिस। पैंथेरा लियो क्या है? ये
लायन। इसका जीनस क्या है? पैंथेरा। अभी मुझे एक बताओ, टाइगर का नाम क्या है? पैंथेरा टाइग्रस। अभी कैट और टाइगर में ज्यादा सिमिलैरिटी है या फिर कैट और सॉरी लायन और टाइगर में? क्यों? सेम जीनस। और इसका जीनस क्या है? फेलिस। हमारा जीनस क्या है? होमो। हमारा स्पीशीज क्या है? सेपियंस। ओके, हाँ, ओके ओके। टाइप्स ऑफ जीनस, दो टाइप्स ऑफ जीनस है। एक मोनोटिपिक जीनस। मोनोटिपिक जीनस मतलब इस वर्ल्ड में आज कौन जिंदा है? सिर्फ होमो सेपियंस है। शायद आपने एवोल्यूशन में पढ़ा होगा, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, ये सब हमारे एंसेस्टर्स है, लेकिन ये आज जिंदा नहीं है। तो अभी वर्ल्ड में कौन जिंदा है? होमो का सिर्फ एक ही जीनस, एक ही स्पीशीज, वो है होमो सेपियंस। ए से जीनस जो एट प्रेजेंट सिर्फ एक ही जिंदा है उसका स्पीशीज, उसको बोलेंगे हम मोनोटिपिक। पॉलीटिपिक का मतलब पैंथेरा। पैंथेरा का कितना है? लियो स्पीशीज है, टाइगर स्पीशीज है, पैरडस स्पीशीज है, सो दैट इज पॉलीटिपिक। ओके, बाकी के हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? फैमिली से नेक्स्ट क्लास करेंगे।